على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قابل احترام علماء کرام، حاضرین، پردہ نشین خواتین حضرات، آئیے ہم سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. خود حضرات، میں حضرت مولانا دل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس مقدس تقریب عرس میں پہلی بار حاضر ہوا، اور اچانک میرے خیال میں ایک دن آیا کہ میں بہت ان کے ساتھ رہا رجوڑی میں، سائڈ ادھر ادھر جانتے ہیں ہمارے بہت سارے ساتھی، بے شک تو میں ان کے حاضر نہیں ہو سکا. میں نے مولانا فاروق صاحب کو کہا کہ میں اس سال وہاں جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا آپ آ جاؤ، چونکہ اس علاقے میں یہ خوب کام کر رہے ہیں. ابھی میرے بڑے خاص آدمی ہیں مولانا عبدالخالق صاحب، لیکن آج کی تقریب میں محسوس کر رہا ہوں ان پر اب تصوف کا غلبہ ہو رہا ہے، اور اصل یہی ہے تصوف. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی کو نہیں ملتی، سمجھے نا. تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ حضرت کے چلے جانے کے بعد بہت ساری کمیاں ہمارے علاقے میں پیدا ہو رہی ہیں. دعا کیجئے کہ ان کے عرس کی برکت سے یہ کمی ساری ختم ہو. آمین. سب سے بڑی چیز آپ کو پتہ ہے دنیا میں کیا ہے؟ ایمان. بے شک بے شک. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایمان. بزرگوں، ایمان. ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. بے شک. اگر عزت دنیا میں ہے تو ایمان کی وجہ سے، بے شک. اور مرتے وقت قبر میں، حشر میں جو عزت ملے گی، جو احترام ملے گا، وہ ایمان کی وجہ سے ملے گا. بے شک. سبحان اللہ. اور ایمان حاصل کر لینا اپنی خاندانی وجاہت، طاقت، رتبے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خدا کی توفیق سے. بے شک. سبحان اللہ. دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کیونکہ سب سے بڑی مقدس برادری جس کو سمجھا جاتا ہے وہ میری برادری کو سمجھا جاتا ہے، اور مشروبات میں سب سے بہتر ٹانک کیا ہے؟ دودھ. بے شک. سمجھے؟ اور دودھ کو اگر آپ کسی غلط برتن میں استعمال کریں گے تو بہت جلد بدبو آئے گی، بے شک. بے شک. اور بھوت پریت اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، بے شک. کس قدر اس میں سے سڑان. بے شک. تو دودھ خراب ہو جاتا تو بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے. اس طرح جب میری برادری خراب ہوتی ہے نا، سخت بدبو، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان ہماری وجہ سے ہے نا. بہت خوب. دیکھو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کے پاس پہنچے، اور اس حدیث کی روایت حضرت علی سے، باپ کے بارے میں بیٹے نے خبردار کیا کہ وہ جا رہے ہیں، آپ گئے. تو آپ نے کہا دیکھو آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، بڑی محبت، اور آپ نے میری بڑی حفاظت کی ہے، آپ زبان سے بولو. خیر وہ بات ایک لمبی ہے، طویل ہے، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا. تو آپ نے یہ کہا کہ تم چپکے سے اگر میرے کان ہی میں کہہ دو گے نا تو میں خدا کے یہاں تمہاری بات کروں گا، کیونکہ ایمان چھپانے کی چیز کا نام نہیں ہے.
दिल में उसका इकरार होना, दिल के अंदर कल तस्दीक होना चाहिए और जबान पर इकरार, यानी इकरार भी होगा और तस्दीक भी होगी तब ईमान होगा। तो आप चुप्पे से मेरे कान में कह दो। तो उनने जुमला कहा था, नारे तकबीर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। तो सरकार सल्लल्लाहु ने उनके सीने पर हाथ मारा। तो आपने इरशाद फरमाया कि इसके दिल पर कुफ्र के ताले लगे हुए हैं। अलबत्ता बाद में उन्होंने इरशाद फरमाया कि मेरी वजह से उनको हल्के अज़ाब में लाया गया है और उनको आग की खड़ाऊ पहनाई गई हैं जिसकी गर्मी से उनका दिमाग खोलता है। हालांकि वो काबे के मुतवल्ली हैं, नाज़िम उमूर काबा है जनाब। अब देखो कि एक आदमी नाज़िम उमूर काबा मुतवल्ली है और एक आदमी यहाँ है फतेहपुर में, मौलवी दिल मोहम्मद साहब साहिब ईमान है। तो देखो ये खुदा की मर्जी है, ईमान देना चाहे तो पहाड़ों पर भी दे देता है और न देना चाहे तो काबे के मुतवल्ली को महरूम कर सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्स कायदे अहले सुन्नत। और ये चीज भी याद रखिए आप कि ईमान एक ऐसी चीज है जिसको आप अक्ल से समझ नहीं सकते। शरीयत की बातों को आप अपनी अक्ल से नहीं समझ सकते। जिस तरह यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में और इस किस्म के इंस्टीट्यूट में बहुत सारे लोग हैं, आने के बाद फौरन फतवा सादर करते हैं उर्स के बारे में, तीजे के बारे में, चालीसों के बारे में वगैरह वगैरह, कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में माहिर हो चुके हैं, वगैरह हो चुके हैं, वगैरह वगैरह। कुछ नहीं, ये चीजें तमाम की तमाम जो साबित होती हैं वो पैगंबर की ज़बान से साबित होती है। अक्ल से ये बात साबित की। मसलन एक दिन सरकार की महफिल में हज़रत जिब्रील बैठे थे, तो आपने इरशाद फरमाया, जिब्रील बताओ कि जोर का वक्त हुआ। हज़रत जिब्रील ने अर्ज किया कि नहीं। थोड़ी देर में कहा कि हो गया। कहा अभी तुम कह रहे थे कि नहीं और अभी कह रहे हो कि हो गया। बोले जितनी देर मैंने आपको नहीं कहा था उतनी देर में सूरज हजारों मील सफर तय कर गया और जोर का टाइम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मालूम हुआ कि ये बातें ये इंसानी अक्ल से साबित नहीं होती, पैगंबर की ज़बानी साबित होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात खूब। और ये कहना कि फला आदमी, मैं कहूं कि फला आदमी साहब साहिब ईमान, उनको साहिब ईमान कहना चाहिए, या फला आदमी को हम बेईमान कह दें, नहीं कह सकते। ये बातें वही कह सकता है जिसको खुदा ने पैगंबर बनाया। बेशक, बेशक, बेशक। और इस चीज पर इत्तेफाक है पूरी कायनात में मुसलमानों का कि मखलूक में सबसे ज्यादा अफजल अंबिया की जमात है। बेशक, बेशक। और पूरे अंबिया में सैयदुल अंबिया जो है वो सरकार की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और अंबिया के बाद असहाब की जमात है। बेशक। और असहाब के बारे में कुरान ने ऐलान किया है एक जगह में, गालिबन 28 बारे में, कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। इससे पहले है ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ क़ब्ल फ़थ व क़ातल। यानी जब सरकार ने इस्लाम का ऐलान किया तो अपने पराए सब बिगड़ गए। तो कुछ लोग थे जो सरकार के साथ दे रहे थे और उन पर ईमान ला रहे थे। उसके बाद इतना साया उनको कि उनको मक्का छोड़ के मदीना आना पड़ा। फिर मदीने से जब आप वापस गए और मक्का फतह हुआ, तो मक्का फतह होने के बाद ये उन लोगों ने फैसला किया कि या तो हम यहाँ से छोड़े चले जाएं या मुसलमान हो जाएं। तो मुसलमान हो गए। आप बताओ कि जो लोग पहले
मुसलमान हुए उनके ईमान में और इनमें फर्क है कि नहीं है? पहले तो खालिद सरकार के बिल्कुल मानने वाले थे और तंगी और तकलीफ बर्दाश्त की थी, लेकिन अब इन्होंने जो इस्लाम कबूल किया है वो तो अब कोई मुश्किल इनके लिए नहीं है, चूंकि तकलीफ देने वाले यही थे, मुसलमान हो गए। लेकिन कुरान ने ऐलान किया कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, जितने भी हैं चाहे सरकार के पहले साथी हैं चाहे बाद के हैं, सबको अल्लाह ताला ने जन्नत का ऐलान कर दिया और सबके जन्नती होने का ऐलान किया। खुदावंद कुद्दूस से सब के सबको मैंने जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह, जितने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो अब सारे असहाब कितने हैं? 1,24,000 या कुछ। उलमा इकराम की जमात से मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने पहली बार बहुत खूब, उसमें बहुत मैं खूब, चाहता हूँ बहुत कि खूब। जो हम की तालीम आप तक पहुंचाऊं। बहुत खूब, बहुत आज बहुत दिल में हो चुके वो, अगर से नक्शबंदी थे या सोरवर्दी थे, लेकिन थे कट्टर बरेलवी। हाँ, बेशक बेशक, समझे ना? नक्शबंदी हो या कोई सोरवर्दी हो या अबुल उलाई हो, जब तक वो आला हज़रत का हाथ उस पर न हो पक्का सुन्नी हो नहीं सकता है। बेशक बेशक, सुभान। तो अब इतने जश्न उर्से काजी अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत मुफ्ती आज़म सैयद खलीफा बरेली शरीफ आगे पैंतुकबा सैयद ताज शरिया के खलीफा मुफ्ती आज़म साहब, इतने साहब अनवर साहब, उन सब में फजीलत किसको है? उदैबिया वालों को, जो उदैबिया में सरकार के साथ थे, सब असहाब पर फजीलत उनको है। वो 1400 थे या 1500 थे या 1000 थे, जो भी है, और उन सब पर फजीलत किसको है? बदर वालों को। 313, यानी 313 वहां नहीं थे, 308 थे, लेकिन 5 को सरकार ने मदीने की हुदूद की हिफाजत के लिए रखा था और आपने उनको शामिल किया था, अगरचे वो बदर में नहीं थे। सरकार ने फरमाया यही बदरी। वो बदरी लोग कौन हैं? बदर के ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ताला ने बदर के लिए ऐलान किया कि मैंने तुमको बख्श दिया। एक दिन सरकार ने ऐलान किया कि तुमको खुदा ने बख्श दिया है। एक साहबी ने अर्ज किया कि अगर बख्श दिया तो मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं? आपने फरमाया बिल्कुल सुभान अल्लाह, क्या ना पढ़, तुझे खुदा ने बख्शिश का ऐलान कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह को आपने इरशाद फरमाया दरवाजा गेट पीछे बंद कर, जब जमात खड़ी हुई ना तो पीछे कुंडी मार दो। अब ये आदमी चूंकि रात का था कि मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, इतने में उसके दिल में एक कैफियत पैदा हुई कि जनाब वुजू करते होंगे, सुभान अल्लाह, बस तकबीर होती होगी। जैसे सुना ना आपने, कोई आदमी किसी नियाज में पहुंच जाता था, आता वेंगा, सुभान अल्लाह, आता वेंगा, खाता वेंगा है, उसने बस से तोड़ दिए थे। अब इस साहबी के दिल में वो बात आई। अब वुजू करके थोड़ा जनाब तो उधर सरकार नमाज पढ़ा रहे। अब बोलो कि उस जमात का कितनी फजीलत होगी कि जिसके इमाम सरकार होगी। आजकल इमामत पर बड़ी बहस हो रही है जनाब, है ना? शहीदों में बहस है, चौधरी में बहस है, राजपूतों में बहस है, लेकिन उस इमाम का कौन मुकाबिल सानी लाएगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब देखा कि गेट बंद है, छत पर चढ़ने के बाद में घास फूस को इधर उधर करने के बाद फौरन जमात में, और जब सरकार ने कहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, तो सब बैठे थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खतीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना कारी सखावत हुसैन साहब, आपने नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तुम ये कह रहे थे कि मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, ऐसे ही खुदा ने तुम्हारे जन्नती होने का ऐलान नहीं किया, खुदा ने तुम्हारे दिलों को परख लिया है और जांच लिया है, इसे तुमको जन्नती होने का सर्टिफिकेट अता फरमा दिया। वो लोग गुरु जमीन पर सबसे अफजल आला हैं जो असहाब हैं, बेशक बेशक, लेकिन इनके अंदर भी कुछ दर्जा बदर्जा रुतबे हैं सबके, एक से एक वली है, एक से एक वली है, एक से एक वली है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई वली है।
कितने वली हैं, शाहजरा वाली सरकार भी है, सुभान अल्लाह सुभान कितने वली अल्लाह हैं बेशक और हाजी साहब भी है, बेशक कितने वली हैं और नांगा सरकार भी है, बेशक बेशक कितने मौलाना हैं। लेकिन बताओ मौलवी दिल मोहम्मद का सानी कोई होगा? ना ना बेशक है कोई सानी नहीं है। ये अब समझो कि सरकार अलैहिस्सलाम के असहाब एक से एक 313 और 313 पर 10 आपने इरशाद फरमाया अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, सुभान अल्लाह अली जन्नती है। सुभान अल्लाह। 10 लोगों का नाम लिया। बोलो ये नस है, उनके जन्नती होने के लिए सरकार की ये हदीस नस है। यानी इनके जन्नती होने में शक करने वाला आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। बेशक 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 मेरे गांव में कुछ ये बातें करते हैं सिद्दीक के बारे में और हज उमर के बारे में। मैंने उनको एक दिन सवाल किया, मैं जब उमर को गया और हज को, तो मैंने देखा सरकार के उसमें पर भी लिखा मा बैना मिंबरी मा बैती रोजा तुम मिन रियादिल जन्नह। सुभान अल्लाह सुभान मेरे अल्लाह घर और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत है, जन्नत की क्यारी है। तो हमारे उलमा ने लिखा है कि सरकार ने जिस जगह को जन्नती कह दिया, जन्नत की क्यारी वो जन्नती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह मैंने कहा अरे सुसरो तुम तो जन्नत में जाते जाते जाओगे, लेकिन अबू बकर और उमर अब भी जन्नत में है। नाराए तकबीर नाराए रिसालत फैजान सिद्दीक अकबर नाराए तकबीर खुलफाए राशिदीन। यानी सब पर सबकत 10 को, हाँ? उसके अलावा भी एक हदीस और भी है। सुभान अल्लाह आपने फरमाया फातिमा सईदतु निसाइल आलमीन, सईदा फातिमा तु ज़हरा आलमीन की औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह हसन हुसैन वो जन्नती जवानों के सरदार है। 3 ये हो गए, यानी ये 10 अलग और 3 अलग, इनके जन्नती होने में तो कोई शुबा नहीं। बेशक बेशक और कुरान की रूह से जितने सहाबी हैं सब के सब जन्नती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अब इन 4 का क्या मुकाम है? कुछ लोग कहते नहीं जी अगर हम उनको हर तरीके को हम पहला नंबर दे दें, अरे हम तुम कौन होते हैं नंबर देने वाले? बेशक बेशक वाह बहुत खूब बहुत खूब वाह ये तो नंबर वो देगा ना जिसने अपने महबूब को बनाया सुभान अल्लाह और पूरी कायनात के लिए पैगंबर बनाया, और वो साथ जिसने उनके साथियों को चुना और उनके जमाने में पैदा किया और उनके वजीर और उनके 4 असहाब जो चुना, ये तो खुदा की मर्जी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम कौन होते हो? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर नंबर तुम दे रहे हो, मालूम होता तुम्हारा भी कोई नंबर है ना? तुम क्या नंबर दोगे? अरे ये सिस्टम तो खुदा ने अपने हाथ में रखा है। बेशक बेशक बेशक। एक दिन देखो सरकार ने ऐलान किया, वो तफसील में नहीं जाएंगे, उलमा किराम यहाँ बैठे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब। चंदा चाहिए था उनको एक जंग के लिए, तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से लाए। हजरत उमर आधा घर छोड़ आए और आधा ले आए, और हजरत सिद्दीक सब कुछ ले आए, और एक जो जुब्बा पहना हुआ था उसको कांटों से बटन लगाए हुए थे, उसी शक्ल में हजरत जिब्रील का वरूद हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कहा जिब्रील आज तुम इस लिबास में क्यों? कहा या रसूलुल्लाह पूरी आसमानी मखलूक जो है आज सिद्दीक की सुन्नत में यही लिबास पहने हुए। सुभान अल्लाह सुभान तो आपने पूछा सिद्दीक मेरे घर में क्या छोड़ा? कहा अल्लाह और उसका रसूल। सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह और रसूल, एकदम जिब्रील ने फिर दोबारा हाजिरी का शर्फ हासिल किया और फरमाया कि खुदावंद पूछता है कि तुमने रसूल के नाम, मेरे नाम के साथ रसूल के नाम को शामिल किया, क्या मेरा नाम काफी नहीं था? सुभान अल्लाह। अरे ये किताब पढ़ने के लिए समझे ना, ये तो गूगल और व्हाट्सएप से जाने की जरूरत नहीं, बेशक बहुत उलमा के पास भी जाना होगा, सुभान अल्लाह सुभान कुछ बुजुर्गों की ज़ियारतों पर भी जाना होगा। ये राज की बातें वहाँ ज़ियारतों से भी खुलती हैं। सीना जब खुल जाता है तो फिर किसी ऐसे उस्ताद की जरूरत नहीं होती जनाब मन। तो हमारे उलमा ने लिखा कि
یہ بات یاد کرانے کے لیے ہے کہ ایمان صدیق کا بڑا مضبوط ہے کہ اس نے خدا کے نام کے ساتھ جو سرکار کا نام لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار خدا کے خاص ہیں، جو جس کو ملے گا اسی سرکار سے ملے گا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سرکار کے دروازے سے حضرت عثمان، ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے کہا حضرت عثمان کے پاس پہنچا، میری لڑکی کی شادی ہے، ایک دو لڑکے تھے، تو انہوں نے کچھ دے دیا تھوڑا، جس سے کام چل نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سرکار کے پاس پہنچا، سرکار نے کہا جاؤ عثمان سے کہو کہ میرے نام سے دے۔ انہوں نے بہت کچھ دے دیا، یعنی کئی شادیاں ہو سکتی تھی۔ آپ نے عثمان کو بلایا، کہا جب تم سے اس نے خدا کے لیے مانگا تھا تو تم نے بہت مختصر دیا تھا، اور میرے نام سے تم نے اتنے دیا۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، خدا تو آج بھی ہے، کل بھی تھا، پہلے سے ہے۔ جب تک آپ نہیں آئے تھے ہم کو خدا کا پتہ نہیں تھا، آپ تشریف لائے تو خدا کی توحید کے فیوز و برکات میں ہم کو نہانے کا موقع ملا، اور ہم اس میں ڈبکی لگا رہے ہیں، جو توحید کی دولت ہے آپ کی وجہ سے ہے ہم کو۔ یعنی سرکار آئے تو توحید کے جلوے آئے۔ اسی طرح ایک دن بیٹھے تھے، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، اور تھوڑی دیر میں حضرت عمر تشریف لائے، حاضر بارگاہ ہوئے، تو لوگوں نے حضرت عمر کی باتیں کی۔ سرکار نے حضرت جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ بتاؤ کیا عمر کو آسمان میں لوگ جانتے ہیں؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عمر کا نام زمین سے زیادہ آسمان پر زیادہ ہے۔ کیا کچھ فضیلت بیان کرو، عمر کی کچھ فضیلت بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر لے آؤں اور فضائل عمر بیان کرنا چاہوں تو فضائل ختم نہیں ہوں گے، عمر ختم ہو جائے گی، اتنی فضیلت۔ تو ایک شخص آیا، ہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اب تم صدیق کے ایمان کا اور آپ نے کا محاسبہ کرو کہ تم نے کیا کیا چھوڑا، اور صدیق نے گھر میں مجھے اور میرے خدا کا نام چھوڑا۔ اس سے پتہ لگا سکتے ہو کہ صدیق کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ، اس لیے کہ حضرت صدیق نے 80,000 درہم خرچ کر دیے جنگ میں خدا کی راہ میں، تو میں اس سے زیادہ دوں تو میرا مقام ان جتنا ہو جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لو اتزن ایمان ابی بکر ماں ایمان جمی امتی لرجح ایمان ابی بکر، اگر میری ساری امت کے ایمان کو صدیق کے ایمان کے ساتھ تولا جائے گا تب بھی صدیق کا ایمان بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور حضرت عمر کی جتنی نیکیاں ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ صدیق کی ایک نیکی اور عمر کی ساری نیکی۔